Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Algebraic Expressions. In the previous class, we have learned about addition and subtraction of algebraic expressions. In this chapter, we will learn the multiplication and division of algebraic expressions. But before going further, let's recall what we have learned before. Algebraic expressions, a combination of constants and variables connected by the basic mathematical operations, that is plus, minus, divide or multiply, is called an algebraic expression. For example, ये सारे ही आपकी algebraic expressions है. यहाँ पे आपका 6, 5, 3, 4 and 2 ये constants हैं. They have their fixed numerical value while a, x and y are variables as they can take different numerical values. Numbers को हम कहते हैं आपके numerical value and आपके जो alphabets होते हैं उन्हें हम कहते हैं variable. Terms of an algebraic expression. Different parts of an algebraic expression connected by plus or negative signs are called terms of the expression. For example, in an algebraic expression, the terms are 3x square, 3xy and minus 2. Actually, आपकी जो किसी भी expression में plus या minus आते हैं तो उससे आपकी terms अलग अलग हो जाती हैं. Like terms and unlike terms, the terms having the same literal factors are called like terms and the terms having different literal factors are called unlike terms. For example, 7xy and minus 6y ये आपके like terms हैं, जबकि 4xy and minus 2x square y ये आपकी unlike terms हैं. Coefficient, the numerical part of a term is called the numerical coefficient and the literal part or the variable part of a term is called the literal coefficient. For example, अगर आपसे पूछा गया है 24xy में आपका 24 जो है वो numerical coefficient है xy का and xy जो है आपका literal coefficient है. चलिए example 1 देखते हैं. Identify the terms and the numerical coefficient for each of the following expressions. देखिए आपके पास पहली expression है, इसमें term है आपके 3p minus pq qr and minus rp. कोफिशिएंट है इसका 3, PQ का है -1, QR का है 1 एंड -RP का है -1. इसी तरह से आपकी जो नेक्स्ट टर्म है x/2 एंड y/2 एंड -xy. इनके कोफिशिएंट देखते हैं. इसका कोफिशिएंट 1/2 और xy का होगा -1. Okay. Types of algebraic expressions depending upon the number of terms in algebraic expression may be categorized as monomial, binomial, trinomial, etc. Monomial, an algebraic expression which has only one term is called monomial. For example, these are monomials. Binomial, an algebraic expression which has two terms is called binomial. For example, all these are binomials. Trinomials, an algebraic expression which has three terms is called trinomial. Keep in mind, an algebraic expression which has one or more than one term is called polynomial. कोई भी algebraic expression जिसमें एक या एक से ज़्यादा terms होते हैं उसे हम कहते हैं polynomial. For example, ये सारे आपके polynomials हैं. Degree of an algebraic expression. If an algebraic expression has only one variable, then the greatest power of that variable is called the degree of the algebraic expression. For example, the degree of the expression x cube minus 3x square plus 9x plus 1 is 3. हम देखेंगे क्या greatest power. तो greatest power इसमें 3 है, तो ये इसका क्या है degree. If an algebraic expression has two variables, then its degree is the highest power of the term obtained by adding the powers of the variables. For example, आपके पास ये टर्म है राइट. अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो आप पावर्स को ऐड करेंगे. देखिए ये आपका आएगा 3 + 2 5, ये 2 + 1, तो आपका हाईएस्ट ही रहेगा. दैट मीन्स 5 जो है डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन है. Next is addition and subtraction of algebraic expressions. The addition and subtraction of algebraic expressions can be done by two methods, horizontal or row method, column or vertical method. Horizontal method. In this method, write the algebraic expressions in a row and then add or subtract the like terms. For example, आप horizontal method है, आपको प्लस करना है राइट. 2a minus 3b plus 7c plus 5a plus 2b minus 3c. अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे. 2a plus 5a minus 3b plus 2b plus 7c minus 3c. 2 और 5 होता है 7a, 3 में से 2 गया आपका -b एंड 7 minus 3c is 4c. ओके, इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना है आपके हॉरिजॉन्टल मेथड से. नेक्स्ट इज कॉलम मेथड. अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. सबसे पहले है अरेंज द लाइक टर्म्स इन सेपरेट कॉलम्स, add each column and carefully considering the signs of the terms in each column.
देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं उनका एक कॉलम बना लेंगे, राइट, और उसके बाद आप इन्हें देखेंगे कि क्या करना है, आप प्लस करना है कि आपको माइनस करना है, राइट, और आप इस तरह से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप्स फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट द माइन्यूट फर्स्ट, write the subtrahend below the like terms of the minute, change the sign of each term in the subtrahend from positive to negative and negative to positive with new signs of the subtrahend, add up like terms column wise। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइन्यूट को लिखना है पहले, यानी कि जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है दिस इज माइन्यूट, इसको आप पहले लिखेंगे एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, साइंस चेंज कर देंगे। आपका यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली माइनस से प्लस करेंगे। ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। देखिए कितने एक्सप्रेशंस इसमें 1 2 3, तो दिस इज ट्राइनोमियल। ओके इसमें कितने एक्सप्रेशंस हैं 2, तो बाइनोमियल, एंड दिस इज मोनोमियल क्योंकि एक ही टर्म है। नेक्स्ट इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैक्सिमम देखिए आप पावर देखेंगे तो मैक्सिमम पावर 2, तो इसमें आ जाएगा आपका 2, इसमें आपका है 1, इसमें आपका है 2, तो इसी तरह से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे आपके पास ये है 5, आपके पास टर्म है 5x(y)(z²), आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है तो वो है आपका 5। इसी तरह से आपकी दूसरी टर्म है -3z(y), तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज -3। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं multiplication of algebraic expressions. Before learning the multiplication of algebraic expressions, let's recall the laws of signs and laws of multiplication of exponents. Laws of signs. In the previous class, we have learned that product of two integers with like signs is positive and the product of two integers with the unlike signs is negative. In the same manner, the product of two monomial with the like signs is positive and the product of two monomial with the unlike signs is negative. Therefore, देखिए अगर दो लाइक साइंस हैं यानी कि प्लस प्लस हैं और नेगेटिव नेगेटिव है तो साइन हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, बट आपके दो अनलाइक साइंस होंगे तो आपका नेगेटिव में होगा। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, व्हेन 2 or more वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड देन पावर ऑफ लाइक वेरिएबल्स आर एडेड। देखिए जब आपकी दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो लाइक वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a² b इंटू ab², तो देखिए a² इंटू a एंड आपका हो जाएगा b इंटू b², तो a हो जाएगी a की पावर 3 इंटू b की पावर 3, इनकी पावर्स ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 or more monomials. To multiply 2 or more monomials, we follow the given steps. Step 1, multiply the numerical coefficients of the monomials along with their sign. Step 2, multiply the like variables, that is add the exponents of the like variables. Multiply the above two results. तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है 2p एंड 3pq, 2p इंटू 3pq, 2 3s are 6, देखिए p आपके पास 1 and 1, तो p की पावर 2 and q। इसी तरह से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 5s आपका हो जाएगा 15, माइनस का 15, x की पावर हो जाएगी 2 + 3 5, x की पावर 5 एंड y की पावर 2 + 2 4। ओके Multiplication of polynomials by monomials. To multiply a polynomial by a monomial, we use distributive property of multiplication over addition and subtraction. That is, each term of the polynomial is multiplied by the monomial. Example के जरिए समझते हैं। Find the product of the following. आपको क्या करना, polynomial को monomial से multiply करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास है 2xy से आपको multiply करना है 3x² - 5xy + 2y²। 2 को 3 से करेंगे 6x³ y माइनस 10x² y² प्लस 2 2 4 x एंड y की पावर हो जाएगी 3। तो इस तरह से आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, राइट। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स। टू मल्टीप्लाई 2 बाइनोमियल्स वी हैव 2 मेथड्स, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज कॉलम मेथड। तो देखिए अब आपको दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल मेथड देखते हैं। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, देखिए 2a + 3b एंड दूसरी आपके पास कौन सी टर्म है 5a - 3b। ओके तो हम सबसे पहले हम करेंगे आपके हॉरिजॉन्टल मेथड से, राइट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को 5a - 3b, देन आपका है +3b।
3b से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, 5a माइनस 3b, 10a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 15ab माइनस 9b स्क्वायर। चलिए देखिए, 10a स्क्वायर 15 माइनस 6 इज 9ab माइनस 9b स्क्वायर। सो ये आपका है हॉरिजॉन्टल मेथड। नेक्स्ट इज कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड में कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से आपकी दोनों एक्सप्रेशंस को रखा गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5a, 5a से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप करेंगे माइनस 3b से इन दोनों को मल्टीप्लाई, और उसके बाद आप लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, राइट। Multiplication of two polynomials. To multiply two polynomials, we can use the horizontal or column method. अगर आपको two polynomials को multiply करना है तो आप horizontal method का भी use कर सकते हैं, है ना, और column method का भी। तो चलिए example देखते हैं आपको कैसे करना है। So you have 3x square minus 2x plus 1 and x square plus 3x माइनस 5। अब आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 3x स्क्वायर से आप ये पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 माइनस फिर 2x से आप इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्लस 1 से आप इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके और आपका फिर सेम मेथड है, सेम प्रोसेस जैसे आपको बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे फिर लाइक टर्म्स को साथ में रखेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। Verification of the product of algebraic expression. To verify whether the product of two or more algebraic expression is correct or not, we may substitute some particular values of the variables in both, that is in the factors and product. अगर आपने दो algebraic expressions का प्रोडक्ट निकाला है और वो सही है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से, आपके पास कुछ वैल्यूज होंगी जो आपको पुट करनी पड़ेंगी। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -1। सो लेट्स हैव अ लुक। देखिए आपके पास क्या है, 3x माइनस 4y एंड आपको मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए 3x से आपको मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 4y से आप इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। ओके, अब अगर कोई लाइक टर्म्स है तो आप उन्हें साथ में रखेंगे, जैसे कि 3x क्यूब नहीं है आपके पास, 6x स्क्वायर y माइनस 4x स्क्वायर 3xy स्क्वायर एंड माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। ओके, 6 माइनस 4 2x स्क्वायर y, 8 माइनस 3 माइनस 5xy स्क्वायर एंड माइनस 4y क्यूब। ओके, अब आपका ये प्रोडक्ट आ गया है, राइट। अब कैसे वेरीफाई करेंगे आप इसे, आप वेरीफाई करेंगे x की वैल्यू 1 रख के एंड y की वैल्यू 1 रख के, ओके। तो चलिए x की वैल्यू आपके पास है 1 क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर एंड y की वैल्यू है आपके पास -1 माइनस 5 इंटू 1 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 क्यूब। 3 ये आपका हो जाएगा -2 एंड -5 एंड आपका ये माइनस में आएगा तो +4। सो 3 - 2, देखिए 3 और ये आपका पॉजिटिव है, 3 + 4 - 2 - 5, 3 + 4 7 -2 and -5 -7
and the result is 0. Hence verified. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10x². इसी तरह से 3 को 9 से करेंगे -27 एंड आपकी जो पावर्स है ए की वो ऐड हो जाएंगी a⁵. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें भी आपको प्रोडक्ट निकालना है. देखिए आपके पास है -3x माइनस साइन 7y एंड 5x माइनस वाई. तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले -3x से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, देन -7y से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो -3 5 15x² प्लस 3xy -7 5 35xy प्लस 7y². इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं जो कि बहुत ईजी हैं. Next is division of algebraic expressions, laws of signs. The quotients of two monomials with like signs is positive and the quotient of two monomials with unlike signs is negative. Therefore, अगर आप दो पॉजिटिव साइन को डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव, दो नेगेटिव साइन को डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव, बट दो अनलाइक साइंस होंगे तो नेगेटिव. लॉ ऑफ डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स. इफ x is a variable and m and r positive integers such that m is greater than n, then x raised to the power m divided by x raised to the power n is equals to x raised to the power m minus n. Division of two monomials. To divide a monomial by a monomial, we follow the given steps. Divide the numerical coefficient and obtained the quotient. Divide the like variables, that is subtract the exponents of the like variables and obtain the quotient. Write the product of the above two quotient. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले आपके पास है 54a4 डिवाइडेड बाय 18a³. सबसे पहले आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे. जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 18 3 एंड अब आपके पास देखिए a की पावर 4 एंड a की पावर 3 है, तो आप क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे, यानी a4 माइनस 3, सो 3a आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय मोनोमियल्स. To divide a polynomial by a monomial, divide each term of the polynomial by the monomial. अब आपके पास क्या है कि पॉलिनोमियल है और आपको मोनोमियल यानी सिंगल टर्म से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की हर टर्म को आप डिवाइड करेंगे. राइट, कैसे करेंगे, देखिए जैसे आपके पास है ax प्लस ay प्लस az, इसे डिवाइड करना है a से. तो सबसे पहले आप ax को डिवाइड करेंगे a से, प्लस ay को डिवाइड करेंगे a से एंड az को डिवाइड करेंगे a से. a गोज आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x प्लस वाई प्लस z. ये आपका आंसर हो जाएगा. राइट, चलिए नेक्स्ट है आपके पास डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय बाइनोमियल्स. टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल we use a long division method and follow the given steps. Arrange the terms of the divisor and dividend in descending order of their degrees. Divide the first term of the dividend by the first term of the divisor to obtain the first term of the quotient. Now multiply all the terms of the divisor by the first term of the quotient. Subtract the result from the dividend. Consider the remainder, if any, as a new dividend and proceed as before. Repeat this process till we obtain a remainder which is either 0 or a polynomial of degree less than that of the divisor. तो देखिए इसको एग्जाम्पल के जरिए करते हैं, समझते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, जो डिविडेंड है उसकी जो टर्म्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है. तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा, और डिवाइजर को भी इसी तरह से अरेंज करना है. इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड दैट इज 5a³ by the first term of the divisor, that is a² to get the first term of the quotient, that is 5a³ divided by a². तो आपके पास क्या आएगा, 5a आ जाएगा. इसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को 5a से, फिर देन आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट डिविडेंड में से, देन सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड, कंसीडर द रिमाइंडर एज अ न्यू डिविडेंड. अगेन डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ न्यू डिविडेंड दैट इज 2a² by a² to get the another term of the quotient, that is. स्टेप 7 में आप क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिविडेंड, वी गेट द रिमाइंडर a-1. आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, a-1. देखिए अभी किस तरह से डिवाइड किया गया है, अब वो हम चेक करते हैं. a² minus 3a plus 4, दिस ये आपका लॉन्ग डिविजन मैथड है. ओके, नाउ
5a क्यूब माइनस 13a स्क्वायर एंड प्लस 15a प्लस 7, ये ऐसे आपको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कि आप क्या करेंगे 5a को जब आप 5a से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर को तो आपके पास आएगा 5a क्यूब। अब आपको क्या करना है, अब -3a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3a को जब हम 5a से करेंगे तो आपका आ जाएगा -15a स्क्वायर एंड जब आप 4 से इसको करेंगे तो 4 5 20a। नाउ साइन आपके रिवर्स हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो गया तो 2a स्क्वायर, ये माइनस का हो गया तो -5a प्लस 7। ओके, अब आप देखिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट इज आपको a स्क्वायर करना है। तो आप a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2a स्क्वायर, देन आप 3a को करेंगे तो -6a एंड 4 को करेंगे तो 4 2 8, अगेन माइनस प्लस माइनस, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा a एंड दिस इज 7, -8 में से 7 होगा तो -1। देखिए a -1 जो है आपका क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए अब आप इस पे रखेंगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, राइट। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 8ab बाई 2ab। अब 8ab को आप 2ab से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले 2 4 एंड ab से ab कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द फॉर्मूला। आपको डिवाइड करना है एंड देन उसके बाद वेरीफाई भी करना है, राइट। तो मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगी, वेरीफाई आप खुद से करेंगे। सो व्हाट, आपका डिवाइजर है आपके पास x -2 एंड ये है आपके पास x स्क्वायर -4x प्लस 4। तो देखिए सबसे पहले x से करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर -2x माइनस प्लस 2x एंड ऊपर से 4। फिर आप क्या करेंगे, x को 2 से करेंगे तो 2x एंड 2 2 4, राइट, माइनस प्लस कैंसिल और आपका हो जाएगा 8 आपका बचेगा रिमाइंडर। ओके, और इसके बाद आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का आपको फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, राइट। Overview. An algebraic expression is combination of constant and variables connected by the basic mathematical operation plus, minus, multiply or divide. The greatest power of a variable is called the degree of the algebraic expression in one variable. In addition and subtraction of algebraic expression, like terms are added and subtracted. To multiply a polynomial by a monomial, we use distributive property of multiplication over addition and subtraction. Before performing long division method, the divisor and dividend must be written in descending order of their degrees. जब भी आप long division method perform कर रहे हैं तो आपको divisor and dividend को हमेशा descending order of their degrees arrange करना पड़ेगा। Children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा। बाकी के exercise की practice अब आप खुद से करेंगे।